Good morning, students. How are you? I hope you are doing well during this time. As you know that you are staying at home and currently you are trying to do a best effort to attend the online classes, whatever the content is delivered by your subject teacher, that is grabbed by you, and whatever the notes you are preparing by seeing these online videos, okay, you are just sending to your subject teacher. So maybe I pray from the God that your effort will give you a best result in the academic session and you are just going to promote in the next class also. So with this wish, this is Virendra, your computer science teacher, and I am here to give you a most important revision session for you. Yes, today we will have the revision session, right? So right now, what chapter we are going to revise it? Okay, just look at on the board. So today we are going to have the revision of chapter number 5, and the name of the chapter is Advanced Feature of Microsoft Excel, right? And what are the contents we are going to have a revision? Okay, these are the contents: creating a chart in Excel, shorten and filtering of data. These three topics we are going to cover. So students, as you know that in the last video, I have given some of the details about some particular topic that's most important for you. What are that topics? So in that topic, I have given the what are the components of the chart. Okay, and I have tried to give you the elaboration about the same in a best way. Okay, and the some other topics are still pending. We'll try to give you the details about the pending topics in the next video. Okay, so maybe the topics is types of chart and some how to do the formatting of the chart component. Okay, these two topics are pending. So I will try to give you the details in two parts. Okay, one is for the your types of chart, and the second one is for your how to do the formatting of chart component. In today's video, we will try to cover out only these topics. Okay, so before starting the video, I just want to give you a warm welcome to on my YouTube channel. Right? So my dear students, my viewers and my participants, if you like this video, don't forget to subscribe this, and if you like this video, please press the bell icon also, because this bell icon gives you a one kind of notification, and that notification gives you a one kind of update that you have received my updated video, my latest video. Okay, so students, let's start our this class. And in this class, okay, first we are going to understand about how to create a chart. Okay, and what are the steps for that, right? And before starting this topic, I have a request that please watch my previous video also, because previous video also gives you the practical demonstration about the same. Yes, if you want to know how practically we are following the steps to create the chart, you can do it. But for performing this, okay, for performing, you should be aware about the steps. In today's class, it is just a revision class as well as you can say a theory class. Okay. After aware this, just apply these steps on your computer by opening the application Microsoft Excel. Okay, and then if you have any kind of problem, any kind of doubt, just get in touch with me by using the YouTube comment as well as WhatsApp. Right? So student, let us start. So today's topic is creating a chart. Creating a chart in Excel. This is the topic we are going to have the revision of this. Okay. So first of all, you know that what is the definition of chart? आप सभी जानते हैं. Okay. So the definition of chart is it's a one kind of pictorial representation of chart.
pictorial representation of a data. Whatever the data you have, that you are going to practically, that you are going to apply pictorially, okay, on the Microsoft Excel. And why? Because it will reduce the effort. It will reduce the effort. That effort, okay, gives you a one kind of, you can say, is maximum output. जब आप अपने डेटा को पिक्चर की फॉर्म में दिखाते हो, उसको एनालाइज करना आसान हो जाता है, उसको समझना आसान हो जाता है, हम आसानी से कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो चार्ट इस्तेमाल करने का जो सबसे बड़ा जो आपका मुद्दा है यहाँ पर, वो मुद्दा है कि आपके पास बहुत बहुत बड़ा डेटा है आपके पास, और अगर उन सभी डेटा को आप अपने चार्ट के माध्यम से उसको आप दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है आपके अंडरस्टैंडिंग, आप किसी को आप आसानी से समझा सकते हो आप, ठीक है, आसानी से ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो आप, आसानी से कंपेयर कर सकते हो। और सबसे जरूरी, आपका जो एफर्ट है वो एफर्ट आपका कम हो जाएगा, ओके। सो इसी के साथ हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो स्टेप्स है वो स्टेप्स क्या है, व्हाट आर द स्टेप्स टू क्रिएट अ चार्ट, okay, as you know that the steps are, first what you are doing is, first you go to the insert tab, okay, first आपको जाना है insert tab में जाना है। In insert tab you will get one group, the name of the group is chart group, okay। In that group you will have chart button, right? And once you click on chart button, you will have chart dialog box appears, right? And you will get different kinds of chart. Okay, from here you will get different chart types. Okay, so what you will do here, so you will select any chart, ओके ओके। अब आपको मुझे एक चीज और बताना है यहाँ पर कि जब आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे तो आप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका स्टेप है यहाँ पर, इस स्टेप नंबर 1 से पहले इंपॉर्टेंट स्टेप टू इनिशिएट द चार्ट, important step to initiate the chart। वो क्या स्टेप है? selection of data in Excel। सबसे जरूरी आपके लिए यही है, ठीक है, सबसे जरूरी यही है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पर डेटा को सेलेक्ट करना है। जब डेटा आपका सिलेक्ट हो जाएगा, अब उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इंसर्ट टैब में जाना है, चार्ट ग्रुप में जाना है, वहां पर चार्ट बटन आपको दिखाई देगा। जैसे ही बटन में क्लिक करेंगे आपको दिखाई देगा चार्ट डायलॉग बॉक्स, और उस डायलॉग बॉक्स में डिफरेंट टाइप के आपको चार्ट मिल जाएंगे और उनमें से आप कोई भी चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ओके। सो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम ले लेते हैं यहाँ पर कॉलम चार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, ओके। assume column chart is selected, okay। so column chart जब आपका सेलेक्ट हो जाएगा तो इमीडिएटली आपके सामने जो आपका डेटा है उस डेटा को हम अपने एक्सेल की भाषा में कहेंगे कि वो एक डेटा शीट है। जिस शीट पे
डेटा को बनाते हैं चार्ट बनाने के लिए, उसे हम कहेंगे डेटा शीट। ओके, तो प्लीज इसको आप याद रखिएगा। एक पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया यहाँ पर डेटा शीट। ओके, इसको भी याद रखिएगा। ओके, ये आपका हो गया डेटा शीट। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि जब हमारा चार्ट हमारा बन जाएगा, ठीक है, जस्ट एक बार क्लिक करने से ही तो उस चार्ट पे क्या क्या चीजें आपको दिख सकती हैं यहाँ, और इसके अलावा कौन कौन से जो टैब है वो बाय डिफॉल्ट अपीयर हो जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं हम 3 tabs are appear once you create the chart। वो 3 टैब कौन कौन से हैं? आपको एक टैब दिखाई देगा डिजाइन टैब के नाम से, ठीक है, एक टैब आपको दिखाई देगा डिजाइन टैब के नाम से, दूसरा हमारा होगा लेआउट के नाम से, दूसरा हमारा लेआउट हो गया, और तीसरा हमारा हो गया फॉर्मेट। ठीक है, तो इस तरह करके आपको 3 टैब आपको अलग अलग दिखाई देंगे, और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको यहाँ पर अलग अलग बटन सब दिखाई देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आया होगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हम ये देखते हैं कि जब हमारा चार्ट क्रिएट हो जाता है तो उसका लेआउट कैसे चेंज करते हैं। ओके, उसका जो लेआउट है कैसे चेंज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, टू चेंज द layout of chart। ठीक है, कैसे हम चेंज करेंगे इसको देखते हैं हम। सबसे पहले क्या करेंगे हम, आपको यहां पर जाना होगा, यहां पर सबसे पहले डिजाइन टैब। डिजाइन टैब में आपको एक ग्रुप दिखाई देगा, उस ग्रुप का नाम होगा चार्ट लेआउट। चार्ट लेआउट, और यहीं पर आपको कई तरह के लेआउट्स आपको दिख जाएंगे। कैसे, एक बटन आपको दिखाई देगा वहां पर चार्ट लेआउट में, उसका नाम है लेआउट। यहां पर आपको बटन दिखाई देगा लेआउट के नाम से, उस पर क्लिक करेंगे, टोटल आपको वहां पर 9 लेआउट्स आपको दिखाई देंगे, लगभग आपको दिखाई देंगे 9 लेआउट्स। ओके, और उस 9 लेआउट में से कोई भी लेआउट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सेलेक्ट any one layout from provided layouts। ओके, सो ये आपका स्टेप हो गया। आप गए हम डिजाइन टैब में, डिजाइन टैब में चार्ट लेआउट पे गए, फिर इसके बाद आगे लेआउट बटन आपको दिखाई दिया, और वहां पर जो भी आपको प्रोवाइडेड लेआउट है उसमें से आपने कोई एक सेलेक्ट कर लिया। तो जब आप देखेंगे कि इमीडिएटली वो आपके जो चेंजेस हैं वो आपके चार्ट पे दिखेगा। मे बी बाय डिफॉल्ट जो आप लेआउट चूज करेंगे आपको वहां पर जो लीजेंड्स हैं वो लीजेंड्स आपको राइट साइड में दिखेंगे, चार्ट टाइटल नहीं दिखाई देगा आपको। जो आपका वैल्यू एक्सिस है या कैटेगरी एक्सिस है उसमें जो आपका नंबर्स हैं वो आपको दिखाई देंगे वहां पर, कुछ आपको वहां पर डेटा सीरीज आपको दिखाई देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि आपने कॉलम चार्ट को पहले से सेलेक्ट कर रखा है आपने, तो कॉलम चार्ट में आपको यही दिखाई देगा कि यहाँ पर कि जो भी आपके जो बार्स हैं, ठीक है, जो कैटेगरीज हैं और जो आपकी वैल्यूज हैं उसको प्लॉट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है यहाँ पर। अब देखिए जो वाई एक्सिस है उसी वाई एक्सिस पर आपको बार्स दिखाई देंगे, ठीक है, और आपकी जो कैटेगरीज है वो आपको दिखाई देंगे एक्स एक्सिस दिखाई देंगे कॉलम चार्ट में। ये मैं आपको इसके बारे में डिटेल्स है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा आपको वहां पर, और नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे से आपको मैं इसकी डिटेल्स बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि अगर हमें किसी का अगर हमें डिजाइन चार्ट का डिजाइन चेंज करते हैं अगर, ठीक है, जैसे मीडियम चार्ट डिजाइन करना है या आपको हाई चार्ट डिजाइन करना है, कई तरह के डिजाइन होते हैं, उसके लिए क्या
क्या करेंगे हम, फिर से वही सेम प्रोसेस है आपका, ठीक है, टू चेंज द डिजाइन ऑफ चार्ट। ठीक है, क्या करना होगा आपको, सबसे पहले आपको जाना होगा यहाँ पर डिजाइन टैब में। सबसे पहले आप गए यहाँ पर डिजाइन टैब में आपको दिखाई देगा 4 डिजाइन, एक ग्रुप आपको दिखाई देगा 4 डिजाइन, और इसी ग्रुप में आपको दिखाई देगा यहाँ पर एक दिखाई देगा मोर बटन, एक दिखाई देगा आपको मोर बटन। और जो मोर बटन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, मैं आपको बता देता हूं आपको, ये कुछ इस तरह से, यहाँ देखिए मेरी जो उंगली है यहाँ पर इस तरह से आपको यहाँ दिखाई देगा। ओके, अच्छा, मोर बटन में आप करेंगे सेलेक्ट any one design, select any one design from provided layouts। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पर अपने 4 जो डिजाइन है वो किस तरीके से चेंज करेंगे हम। सबसे पहले कहाँ है, डिजाइन टैब में 4 डिजाइन वहाँ ग्रुप आपको दिखाई देगा वहाँ पर, और उस ग्रुप में एक बटन है आपका मोर बटन जो कि इस तरह से दिखाई देगा, वहां पर क्लिक करते हैं, कई सारे डिजाइन आपको दिखेंगे, उसमें से कोई एक डिजाइन आप चूज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये रहा आपका यहाँ पर हाउ टू क्रिएट अ चार्ट की डिटेल्स। ओके, और अब वो समय आ गया है कि अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ें। ओके, और अगले टॉपिक में हम जानेंगे यहाँ पर किस तरीके से शॉर्टिंग करते हैं, किस तरह से फिल्टरिंग करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा शॉर्टिंग। ठीक है, सो टॉपिक नंबर 2, इस समय हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 2, और टॉपिक हमारा है शॉर्टिंग। ठीक है, टॉपिक हमारा है शॉर्टिंग। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये क्वेश्चन ये उठता है कि हम शॉर्टिंग कहते किसको हैं, होता क्या है। ओके, अब हम मान के चलते हैं कि हमारे पास कुछ डेटा है, कुछ भी सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं हम, जैसे कि आप मार्केट जाते हैं, मार्केट गए, मार्केट जाने के बाद आपने जो आइटम आपको मार्केट से परचेज करना है वो आइटम आपने पेपर पे लिख लिया। ठीक है, और जब आप मार्केट जा ही रहे थे तो मार्केट में कोई आपसे मिल गया और उन्होंने आपसे पूछा कि आप मार्केट में हैं। हाँ, तो आपसे बताया कि हाँ कुछ ज़रूरी काम है जिस वजह से मैं मार्केट में आया हूँ और ये सामान लेना है। तो दूसरे आदमी जब आपने प्रॉपर उस लिस्ट को देखा, उसने ये सोचा कि मैं एक काम करूँगा, ये जो लिस्ट है इस लिस्ट को प्रॉपर तरीके से अरेंज करूँगा। अरेंज करने का मतलब ये हुआ कि आप उसमें ये देखिए कि जो लेटर्स हैं, जो शब्द हैं, वो ए से कौन से सामान है, बी से कौन से सामान है, सी से कौन से सामान है, ऐसे अल्फाबेटिकली आप असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में अरेंज कर दीजिए। उसके बाद आप वहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग अपना सामान ले लीजिए। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं स्कूल के हिसाब से, स्कूल में आपकी जो अटेंडेंस रजिस्टर होती है, उस अटेंडेंस रजिस्टर में आप सभी बच्चों का जो नाम है वो एक समझिए अरेंज वे में होता है, ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है। सबसे पहले उन बच्चों के नाम होते हैं जो ए से आते हैं, उसके बाद बी से, फिर सी से, फिर डी से, ऐसे ही आपका क्रम चलता है। सो स्टूडेंट्स, आप अगर इस तरह का डेटा एक्सेल में तैयार करना चाहते हैं तो एक्सेल में हम किस तरीके से करेंगे, हम क्या तरीका है, कौन से स्टेप्स है। प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखने के लिए आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें यार, वहां पर आपको पता चल जाएगा। और रही बात आपके स्टेप्स की, आपके डाउट्स की, वो मैं आपको इस वीडियो में हर एक तरह के डाउट्स और हर एक तरह के जो भी प्रश्न हैं उनका मैं निदान आपको दे दूंगा मैं। ओके, सो स्टूडेंट, पहले हम ये समझते हैं व्हाट इज शॉर्टिंग।
शॉर्टिंग इज अ फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। क्या है ये? शॉर्टिंग इज अ फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। शॉर्टिंग इज अ फीचर ऑफ एक्सेल in which user is arranging the data in ascending or ascending or descending order. ओके, सो ये है आपकी डेफिनेशन, ये आपका हो गया डेफिनेशन। ओके, अब हम बात करते हैं स्टेप्स क्या क्या है। शॉर्टिंग अगर करना है तो उसके लिए स्टेप्स क्या क्या फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप्स, सबसे पहले क्या करना है, आपको जाना होगा डेटा टैब में। ठीक है, सबसे पहले जाना है आपको डेटा टैब में। यहां पर आपको दिखाई देगा शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। यहां पर आपको दिखाई देगा शॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप, और यहां पर आपको एक बटन आपको दिखाई देगा इस तरीके से, एक बटन आपको इस तरह से दिखाई देगा, और ठीक है इस तरह से बटन आपको दिखाई देगा। ये जो बटन है ये है आपका असेंडिंग ऑर्डर के लिए, और ये जो बटन है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। किसी भी एक बटन को आपको सेलेक्ट करना है, आपको क्लिक करना है आपको, और आपको ये बटन पहले से पता है आपको कि अगर आप किसी भी तरह का आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं आप, तो सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट यू नीड टू सिलेक्ट योर डेटा, आफ्टर सिलेक्शन ऑफ योर डेटा यू नीड टू परफॉर्म दिस वन, डेटा टैब, short and filter group, and then select this button or this button. Okay, this is ascending order and this is for descending order, right? अच्छा, आगे देखिए, ऐसा करने के बाद आपका जो डेटा है वो आपका वहां पे आपका शॉर्ट हो जाएगा आपका। अच्छा, इसके बाद एक और तरीका है यहाँ पर, इसी में आपको एक और बटन दिखाई देगा, एक और आपको बटन दिखाई देगा जिसका नाम होगा शॉर्ट। एक बटन दिखाई देगा आपको शॉर्टिंग। ओके, अच्छा, जब आप शॉर्टिंग करते हैं तो शॉर्टिंग करने के बाद आपका जो डेटा है आपको प्रॉपर तरीके से असेंडिंग डिसेंडिंग आपका हो जाएगा। ठीक है, अगर आप शॉर्टिंग में क्लिक करते हैं तो क्या होगा, यहाँ अगर आप शॉर्टिंग में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स है, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स है। चलिए देखिए क्या होगा, आपके सामने जो डायलॉग बॉक्स आएगा आपको वहां पर तीन अलग अलग कॉलम्स आपको दिखेंगे, वहां पर तीन अलग अलग कॉलम्स आपको दिखेंगे, जिसमें से पहला कॉलम आपको दिखाई देगा शॉर्ट टर्म कॉलम्स, और यहाँ पर लिखा होगा ऑर्डर। यहाँ पर क्या होगा, जिन जिन कॉलम्स को आपने सेलेक्ट किया होगा उनके नाम आपको दिखेंगे, यहाँ पर नेम ऑफ कॉलम्स आपको यहाँ शो होंगे, जैसे नेम हो गया, क्लास हो गया, रोल नंबर हो गया, ये सारे आपको दिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर नेम सेलेक्ट कर रखा है, उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपने सेलेक्ट कर रखा है नेम। ठीक है, तो जो कॉलम की जो नेम होगा यहाँ मिल जाएंगे आपको, यहाँ पर आपको दिखाई देगा वैल्यूज, जो भी वैल्यूज हैं आप यहाँ पर वैल्यूज को सिलेक्ट करिए, यहाँ पर नेम सेलेक्ट करिए, यहाँ पर वैल्यू सेलेक्ट करिए, और यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए A to Z। ठीक है, इस डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर नेम कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं वैल्यूज, और यहाँ कर लेते हैं A to Z, और इसके बाद नीचे आपको ओके का बटन है, वहां पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका डेटा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आपका ऊपर का पोर्शन है, यहाँ पर एक छोटा सा चेक बॉक्स आपको दिखेगा,
माय हेडर्स आर एक्सक्लूडेड। ठीक है, कुछ हेडर्स के बारे में आपको दिखाई देगा यहाँ पर, हेडर्स के बारे में। तो अगर आपका यहाँ पर माय हेडर्स आपका जो ऑप्शन है वो अगर टिक है तो आपकी जो ऊपर जो कॉलम हेडिंग्स हैं उस डेटा का जो कॉलम हेडिंग है वो आपका एक्सक्लूड हो जाएगा। तो याद है आपको हमेशा इस ऑप्शन को टिक करना है क्योंकि कॉलम की हेडिंग को शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, आप यहाँ पर इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसी के साथ अब यहाँ पर ये जो स्टेप्स हैं इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद अब हमारा जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो जाएगा, फिल्टरिंग ऑफ डेटा। ओके, फिल्टरिंग ऑफ डेटा। यानी कि हम इसको बोल सकते हैं फिल्ट्रेशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आप फिल्ट्रेशन का मतलब एक ऐसा मेथड जिस मेथड में जिस डेटा को आपको देखना है वो डेटा आपको दिखाई देगा, लेकिन बाकी और जो डेटा है उस समय के लिए हाइड हो जाएगा। बहुत ही अच्छा फीचर है ये। ओके, इन दिस require data is displayed and rest of the data is temporary hidden। ठीक है, ये तो होगी इसके फीचर की बात। और अब हम बात करेंगे इसको करना कैसे। सेम प्रोसेस है। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पर डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद अब आपको यहाँ जाना है सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप। और यहाँ पर आपको दिखाई देगा फिल्टर बटन। जैसे ही आप फिल्टर बटन पर क्लिक करेंगे आपके जो छोटे छोटे फिल्टर्स हैं वो आपकी कॉलम हेडिंग में जाकर लग जाएंगे। इसको क्लिक करने के बाद जो फिल्टर बटन से छोटे छोटे फिल्टर बटन होंगे वो आपकी कॉलम पे लग जाएंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर जब वो फिल्टर बटन आपके उस शीट पर, डेटा शीट जो आपके पास है उसमें लगने के बाद अब आपको क्या करना है कि जैसे मान लेते हैं नेम की फिल्टर बटन को आपने क्लिक किया, आपके सामने एक लिस्ट हो जाएगी। उस लिस्ट में देखेंगे जितने भी स्टूडेंट के नाम हैं या जो भी कुछ आपने लिखा होगा वो सारे नाम सेलेक्टेड होंगे। और जब सारे नाम सेलेक्टेड होंगे जिसको आपको डिस्प्ले करना है उसको आप टिक रखिए, उसको आप टिक कर दीजिए, और जिसको नहीं दिखाना चाहते उसको वहां पर दोबारा से वही क्लिक करके उसको अनटिक कर दीजिए। ऐसा करने से आप उन्हीं डेटा को देख पाएंगे जिसपे टिक है, जिसपे टिक नहीं है वो डेटा आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर आपको सबको देखना है तो वहां पर एक बटन आपको दिखाई देगा, सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल से सारे डेटा सेलेक्ट हो जाएंगे और एक बार फिर से आप सारे डेटा को देख पाएंगे। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं मैंने क्या कहा। सबसे पहले मैंने बताया कि डेटा टैब में जाएंगे आप, सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप में जाएंगे और फिल्टर बटन का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा करने के बाद आपको जो फिल्टर बटन है वो आपकी कॉलम हेडिंग पे लग जाएंगे। जैसे ही कॉलम बटन पे लगेंगे अब आपको क्या करना है, वहां पर उस पर क्लिक करना है। आपके सामने एक लिस्ट खुल के आएगी, उस लिस्ट में जो भी उसकी कॉलम के कंटेंट से सारे टिक होंगे। अब क्या करना है आपको, जिस डेटा को आप समझते हैं कि दिखाना है, ओके, दैट डेटा शुड बी चेक्ड एंड व्हाटएवर डेटा इज नॉट रिक्वायर्ड हियर दैट शुड बी अनटिक। अनटिक करने के लिए क्या करेंगे, उसको आप दोबारा से क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही वो अनटिक हो जाएगा। ओके, तो ये रहा आपका प्रोसेस फिल्टर करने का। ओके, और उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जितने भी कंटेंट्स आपको रिवाइज कराए गए वो सब कुछ आपको समझ में आया होगा। So students, I hope you have enjoyed in this video
whatever the queries you have, you can send it to me. I will try to resolve as early as possible. But student, don't forget to subscribe my channel, because whatever the subscription you are giving, whatever the comments you are giving, whatever the likes you are giving, that's a one kind of motivation for me. And in next video, you will have the impact of that motivation. I will try to make the video in more efficient way. Okay? So students, thank you so much for watching this video, and keep watching the other videos for the practical demonstration and other videos for your knowledge also. Okay? Keep in touch with me, keep smiling, keep healthy. Thank you so much.